chemical equation and a reaction. Now today we'll discuss the different kinds of chemical reactions. Now, chemical reactions are classified into different categories. Certain categories are there which are in our syllabus. So, पहला टाइप है हमारे पास combination reaction. Second type है decomposition reaction. Third type है हमारे पास displacement reaction. Fourth type is double displacement reaction. Next is exothermic reaction. Endothermic reaction. And last one is redox reaction. So these are the 7 kind of chemical reaction which are in our syllabus. So one by one we are discussing all these reaction. एक एक करके हम इन सबको discuss करते हैं one by one. First we define its definition and then taking their suitable examples. Yes. Why? पासवर्ड उनको बोलो सही डाले. हाँ वो सबसे पहले मेरे वाले में आई है. मैं एक सेकेंड लिंक इनवाइट करता हूँ. इनवाइट लिंक कर देता हूँ, उससे शायद हो जाए. Now we'll discuss one by one all these reactions. So first, combination reaction. Now how to define a combination reaction? A chemical reaction in which two or more than two reactants, yes, okay, किन किन को ब्लर दिख रहा है? Chemical reaction in which two or more than two reactants are chemically combined and form a single product is called combination reaction. A chemical reaction
in which two or more than two reactants are chemically combined and form a single product. That reaction is known as combination reaction. दो या दो से ज्यादा reactants क्या होंगे, chemically combined होंगे और एक single product बनाएंगे, तो वो reaction आपकी क्या बोली जाएगी, combination reaction. क्या बोली जाएगी, combination reaction. Now we are discussing certain examples of the combination reaction. जैसे for example first आपका example है that a reaction of quicklime with the water, calcium oxide, this is a quicklime, when added into the water it will be formed calcium hydroxide and that is known as slack lime. क्या बोलते हैं इसको, slack lime. ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड. When the calcium oxide react with the water, it will form a single product, that is calcium hydroxide. तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहाँ दो रिएक्टेंट है, केमिकली कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या बोली जाएगी, कॉम्बिनेशन. क्या बोली जाएगी आपकी, कॉम्बिनेशन. जैसे सेकंड एग्जांपल, C plus O2 gives CO. कार्बन कोक है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया and it will form CO2 गैस. तो दो रिएक्टेंट है कंबाइंड होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है. थर्ड जैसे 2H2 plus O2, ये भी गैस है और ये भी गैस, and they are chemically combined and form a single product and that is water. So that is again a combination reaction. तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब केमिकली कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो रिएक्शन आपकी क्या बोली जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? Is any doubt? Is any doubt? Now we are taking some more example. जैसे एक और example हम लेना चाहें तो ले सकते हैं. 2H2 या फिर H2 plus Cl2 gives twice of HCl. Hydrogen gas react with the chlorine gas and form hydrogen chloride. तो ये दो reactant combine होके एक single product बना रहे हैं, तो that is a combination reaction. Now before discussing the second type, we are discussing fifth and sixth type, composition exothermic reaction and endothermic reaction. तो decomposition को discuss करने से पहले हम फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप डिस्कस कर रहे हैं. पहला टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन in which heat energy is evolved along with products. A chemical reaction in which heat energy is evolved along with the product is known as exothermic reaction. जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट के साथ में आपकी क्या निकलेगी, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, तो वो प्रोसेस, वो रिएक्शन क्या बोली जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन?
हाँ, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा, ठीक है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक क्या होगा? अ केमिकल रिएक्शन in which heat energy is supplied externally to reactants to form products। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी को एक्सटर्नली रिएक्टेंट के साथ सप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? रिएक्टेंट्स प्लस हीट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को जब हम हीट सप्लाई करेंगे तब वो क्या होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Now the examples, certain we are discussing certain examples of endothermic and exothermic reaction। कुछ एग्जांपल ऐसे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जैसे पहला एग्जांपल जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर डिस्कस किया कि द फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम थ्रू द क्विक लाइम। जैसे एक क्विक लाइम है, इसकी वाटर से रिएक्शन हुई और ये क्या बना? स्लैक लाइम बना। तो इस स्लैक लाइम के प्रोसेस के अंदर स्लैक लाइम के साथ में क्या होगा? हीट एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम थ्रू द क्विक लाइम, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो इस प्रोसेस में आपका क्या होता है? हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। क्या होता है? हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस C+O2 gives CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। तो इस प्रोसेस में भी आपका क्या होता है? CO2 के साथ हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तीसरा प्रोसेस, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का जो बर्निंग होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो वो प्रोसेस भी आपका क्या होता है? एक्सोथर्मिक। उस प्रोसेस में भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सक्रीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंटेंट होता है आपका मीथेन गैस। तो मीथेन को आप बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो ये प्रोसेस भी आपका क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद और कौन सा प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है? वो तो किसी भी हाइड्रोकार्बन हमने बोल दिया ना, हाइड्रोकार्बन्स में सब कुछ आ गया। Burning of natural gas, burning of fossil fuels, that process is exothermic. Any other process which is exothermic in nature? Decomposition of decomposition of vegetable matter into the compost is exothermic reaction। yes, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसा कि विधि ने बताया कि decomposition of vegetable matter into the compost। चौथा एग्जांपल आपका हो सकता है decomposition of vegetative matter, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसका जब डीकम्पोजिशन होगा और उससे जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनेगा, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रोसेस के अंदर कंपोस्ट के साथ में हीट एनर्जी भी निकलेगी। और एक और प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है दैट इज व्हाट, हाँ, आप लोगों को ज्वाइन होना है, वापस ज्वाइन होना है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो भी आपका क्या है? एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो आप फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो ग्लूकोज है C6H12O6,
जब इसका डिकम्पोजिशन होता है 6O2, ये क्या बनता है 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी यूनिट्स जो होती हैं, ये एनर्जी यूनिट्स क्या बोली जाती हैं, ATP यूनिट्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल के लिए क्या करती है, एनर्जी करेंसी का काम करती है। सेल जितनी भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो इन ATP यूनिट्स को कंज्यूम करके परफॉर्म करता है। तो जब ग्लूकोज का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये एनर्जी यूनिट्स साथ में रिलीज होती है। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी आपका क्या है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हुआ, जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इज इट क्लियर? Is any doubt in the exothermic reaction? Now next is endothermic reaction. Endothermic क्या हो रहा है, when you have to supply the heat energy externally to the reactants, so they will be converted into the product. तो वो प्रोसेस आपका क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हम लिखना चाहें, N2 plus O2 gives twice of nitrous oxide। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होता है। जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के साथ एक्सटर्नली हीट सप्लाई करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होगा। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली रिएक्टेंट को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं टू कन्वर्ट देम इनटू द प्रोडक्ट। So that process is called endothermic reaction. Is that clear? So अब तक हमने क्या डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, those chemical reaction in which two or more than two reactants are chemically combined and form a single product. So that reaction is called combination reaction. Exothermic reaction, a reaction in which heat energy is evolved along with the product. So that reaction is called exothermic reaction. Third one is endothermic reaction, a chemical reaction in which heat energy is supplied, externally supplied to the product to convert them into the reactant. So that reaction is called endothermic reaction. Is any doubt in any of these three types? एंडोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। सी देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives plus heat form a carbon monoxide. That process is also exothermic, endothermic. 2C plus O2 gives 2CO, formation of carbon monoxide. इस प्रोसेस में भी क्या होता है, हीट आपको सप्लाई करनी होती है। तो जब आपका कार्बन या कोक ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई में क्या होगा, बर्न होगा, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आपको प्रोडक्ट को एक्सटर्नली हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब तक एक्सटर्नली हीट एनर्जी सप्लाई नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस कैरिड आउट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो प्रोसेस आपका क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? others, वंश, प्रीत, स्मिथ, समझ में आ रहा है? Now we'll move to the next type, that is decomposition reaction.
this reaction is just reversible to the combination reaction. ये रिएक्शन जो है सिंपली आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। जबकि डीकंपोजिशन में क्या होगा, a single complex reactant is decomposed into two or more simpler products. एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोसेस आपका क्या बोला जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हाउ कैन वी डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन in which a single complex reactant convert into किस को नहीं है, a chemical reaction